Dear students, so today we are going to see the next question of practice set 5.1 of geometry, and chapters name it coordinate geometry. So this question says that verify means check 3 points P, Q, R are vertices means points of right angle triangle. तो हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि ये दिए हुए पॉइंट्स एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। तो अगर दो साइड का डिस्टेंस मिल जाए और हम उसके स्क्वायर को प्लस करें, और वो जो स्क्वायर का प्लस का वैल्यू मिलेगा वो अगर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है डिस्टेंस ढूंढना तीनों साइड्स के। सो लेट्स फाइंड आउट। लेट p minus 2 Okay, I have supposed the given value into x1, y1, x2, y2 form. Okay, so let's consider these values and find distance. Therefore, PQ by distance formula, PQ equals to x2 minus x1, that is 2 minus 2 square, 2 minus 2, 2 minus of minus 2 square plus 2 minus 2 square equals to 2 plus 2 4, 4 का square, 2 minus 2 0, 0 का square is 0, so I'll write nothing, so equals to 4 square, and that comes to 4. Okay, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा। So we got PQ 4. Next, QR by distance formula QR x3 minus x2 मतलब 2 minus 2, 2 minus 2 the whole square plus 7 minus 2 the whole square equals to 0 square will become 0 plus you can remove it 0 square plus 7 minus 2 5 square, so that gives 5 square, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा 5। Okay, now next is QR, now PR 2 minus of minus 2 square plus 7 minus 2
5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 25। 4 plus 25. So here we can see that we are getting 2 plus 2 square means 4 square plus 25, which gives us 60 plus 25 equals to 41. Okay. So when we square this distance, therefore PR square equals to रूट 41 का स्क्वायर हो जाएगा 41, QR स्क्वायर इक्वल्स टू 25, QR का स्क्वायर करेंगे तो 25, PQ का स्क्वायर करेंगे तो 16। Therefore from 1 to 3 PR square equals to QR square plus PQ square। ये 41 है, ये 16 है, QR is 25 plus 16। ओके, तो ये भी हो जाएगा 41। Therefore लास्ट में स्टेटमेंट पॉइंट P Q R are vertices of right angle triangle by converse of Pythagoras theorem। by Pythagoras theorem इतना ही लिखो। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में ये चीज हमें देखने मिलती है, इस वजह से ये पॉइंट्स जो है राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। दैट्स इट। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट का मतलब प्रूव 2 minus 2 7 3 11 comma minus 1 6 comma minus 6 4 points P Q R S are vertices of a parallelogram। इसका मतलब है कि हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो अगर हम सामने सामने की पैरेललोग्राम की जो साइड्स है उसका वैल्यू निकाल के डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके अगर हम इक्वल शो कर दें अपोजिट साइड्स को, तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो पॉइंट्स हैं वो वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम हैं। तो इसका मतलब है सबसे पहले हम चारों साइड्स के डिस्टेंस ढूंढेंगे डिस्टेंस फार्मूला से एक एक करके, फिर चारों को कंपेयर कर देंगे और प्रूफ कर देंगे। लेट्स सॉल्व। बाय डिस्टेंस फार्मूला PQ is equal to 7 minus 2 3 minus 2 7 minus 2 5 square plus 3 plus 2 minus into minus plus square 25 plus 25 equals to root 50।
फिलहाल इसको √50 ही रहने देते हैं, तो पी क्यू मिल गया। वैसे ही क्यू आर, क्यू आर 11 माइनस 7 -1 -3 11 minus 7 4 -1 -3 -4 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये मिल गया क्यू आर। नाउ आर एस, -6 -11 -6 minus of -1 square -5 square -6 plus 1 square 25 plus -5 square 25 plus 25 50. Now P and S. Six minus 2 -6 minus of -2 4 square plus -6 plus 2 square 16 plus -4 square 16 plus 16 32. So if I take this equation 1 2 3 4 1 2 3 4 from 4 equations, हम कह सकते हैं कि PQ congruent to RS, PQ congruent to RS, that is √50. QR equals to PS √32. Therefore, points डन। तो इस तरह आप शो कर सकते हो कि कोई भी पॉइंट्स जो है वो वर्टाइसेस किसका है, पैरेललोग्राम का या रेक्टेंगल या राइट एंगल ट्रायंगल, बशर्ते हमें उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए उस फिगर की। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। Dear students, next question is question number 6 of practice set 5.1. It says that show that point A, B, C, D are vertices of rhombus. Rhombus का मतलब होता है छोटा स्क्वायर शेप का, स्क्वायर शेप मीन्स पैरेललोग्राम जैसा दिखता है लेकिन उसके चारों साइड सेम होते हैं, दैट इज कॉल्ड रोम्बस। ये छोटा काजू कतरी है, पैरेललोग्राम बड़ा काजू कतरी है। तो हमें प्रूव करना है ये चारों पॉइंट्स रोम्बस के पॉइंट्स हैं, वर्टाइसेस हैं। तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ और इसमें हिंट दे रहा हूँ कि चारों साइड्स इक्वल, यानी आप चारों साइड्स डिस्टेंस फार्मूला से ढूंढोगे और उसकी वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं
तो हम कह सकते हैं कि बिकॉज दीज sides are same, so they are, the figure is, the quadrilateral is a rhombus and point ABCD are vertices of rhombus. That's it. Let's solve question number 7. Dear students, next question is question number 7, in which it says that find x. x मतलब ये जो कोऑर्डिनेट x दिया है वो हमें ढूंढना है, वैल्यू ढूंढना है. Find x if distance between L coordinates M coordinates is 10. ये दो पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं जिसमें एक x है. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकालेंगे वो है 10. तो इसमें ढूंढना क्या है? जब डिस्टेंस 10 दिया है तो क्या ढूंढना है? हमें x ढूंढना है. कैसे मिलेगा? नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से और x मिल जाएगा. चलो करते हैं. a square minus 2ab plus b square. Okay, this expansion is this much plus 8 square. अब इसको हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में. स्क्वायर किया तो ये 100 बन गया और यहाँ से रूट गायब. x square minus 2x 64 plus 166. नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ जाएगा. x square minus 66 ये बन गया 44. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर दो. ये उठा के यहाँ पे लेके आ जाओ. यहाँ पे 0. इसको फैक्टराइज करेंगे. -44 को दो पार्ट में स्प्लिट करो कि प्लस माइनस करने पे -2 है. वहाँ ये स्टेप के बाद में करेक्शन है, उसको चेंज कीजिए. ये वाला स्टेप के बाद में
64 + 1 65 होता है। गलती से मैंने 66 लिखा था। स्प्लिट 5 - 7, हमें यहाँ पे -2 चाहिए, यहाँ पे 35, तो 7 5 है 35, -7 है तो यहाँ पे -7। ये रफ वर्क है। अब इस पार्ट को मैं बीच में लेके जाऊंगा मिडिल टर्म के पास। सो x² -2x की जगह पे मैं लिखूंगा -7x + 5x। इसकी जगह पे मैंने ये लिखा है और यहाँ से मिला है, तो ये -35 सेम। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? x, तो x -7 अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में इन दोनों में से कॉमन क्या है? 5। अब इन दोनों में से सेम क्या है? बचा क्या? इक्वल्स टू, देयरफॉर या तो या x = 7 हो गया, x = -5 हो गया। दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे? ठीक है, x = 7, x = -5। तो डिस्टेंस जो हमेशा होता है वो पॉजिटिव होता है, तो we'll take this number. Okay, so we have got the value. बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कहता है शो दैट द पॉइंट्स ABC आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ हमें प्रूव करनी होती है फिगर के मामले में, तो हम साइड्स या तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के वैल्यू फाइंड करते हैं डिस्टेंस का, और फिर कंपेयर करके या किसी प्रॉपर्टी से हम डिसाइड करते हैं कि वो किस चीज़ का वर्टाइसेस है। तो यहाँ पे बोला गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका मतलब होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? ऑल 3 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल का कोई सवाल तो इसमें है ही नहीं, तो बच गया साइड्स। ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल। तो अब साइड्स कैसे होंगी? AB, BC और AC। तो तीनों का डिस्टेंस फार्मूला से ढूंढ लो, तीनों भी इक्वल आ जाती है, तो फिर प्रूव हो जाएगा कि वो सारे पॉइंट्स वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं। अब आप करने को तो ये खुद कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ बच्चों को परेशानी होगी, बोलेंगे सर ये जो लास्ट का वैल्यू दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है, वो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, इसके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पहले AB ढूंढेंगे, फिर BC ढूंढेंगे, फिर AC ढूंढेंगे। वन माइनस वन, 6 - 2, 0 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 16, 4। ये भी मिल गया कितना? 4। अब BC 1,
ये पार्ट -1, 1 -1 कैंसिल, उसका स्क्वायर प्लस 4 - 6 उसका स्क्वायर, यहाँ पे था 2 का स्क्वायर होता है 4, इंटू बाजू में है मतलब इंटू √3 का स्क्वायर होता है 3, ये हो गया एक चीज, प्लस 4 - 6 - 2 का स्क्वायर, 4 3 12 प्लस 2 2 4 इक्वल्स टू 16 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब AC इन दोनों का होगा सेम माइनस ये, तो सेम स्टेप प्लस 4 - 2 4 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 12 प्लस 4 16 इक्वल्स टू 4। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 सब सेम है, फ्रॉम 1 2 3 AB equals to BC equals to AC, therefore points A B C are vertices of equilateral triangle। बस ये प्रूव हो गया। होप आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। काफ़ी इजी, काफ़ी मज़ेदार था और करने में बहुत ही इजी है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अगर आपने ज़रा सा सिली मिस्टेक कर दी प्लस माइनस करने में, वैल्यूज लेने में, तो समझ जाओ कि आपका पूरा घंटा डहार सब खत्म। तो इस वजह से आप लोग को काफ़ी सावधान रहना है और मिस्टेक्स नहीं करनी है। कूल काम रिलैक्स माइंड से कर सकते हैं। इसके लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैंने उसमें से कुछ होमवर्क दिया, कुछ यहाँ पे किया और कुछ आराम से किया ताकि आपको समझ में आए। कीप प्रैक्टिसिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। See you in the next video.